We're actually doing menstrual cycle. The topic is what? Menstrual cycle. It's a very important topic in O-Level biology. Menstruation is a Latin word, by the way. Menstruation means menses. Menses is a month. So menstruation is monthly loss of blood from the uterus of female. So if you want to understand this, we'll have to understand some hormones like FSH. First of all, we need to understand this hormone, FSH. It's a hormone made from brain. It's made from pituitary gland. FSH is made by what? Made by pituitary gland. It's a part of brain. And you very cautiously need to know, there are two hormones from pituitary in our course. But the question is, what does it do? May I have your attention for what does it do? Where does it act on? So this acts on ovaries. Made from pituitary and acts on ovary. So these two things are important. The question is, what does it do in the ovary? It does two things. Number one, it matures the eggs. When a human female baby child is produced, female child, she's born with about 400 eggs in immature form. So FSH makes eggs to mature, makes follicles. Immature eggs are called follicles. This makes follicles to mature into egg. Right? And the second job it does is also very important. Second thing is that it makes makes follicles. What are follicles, beta? Allah, immature eggs. Makes follicles release estrogen. Follicles तो थोड़ा सा हम इसको समझते हैं बेटा ये ओवरी है अब इसमें फॉर एग्जांपल देयर इज इमेच्योर एग तो ये मैच्योर हो रहा है थोड़ा बड़ा बना रहे imagine this is ovary where there is immature egg या आप कह लो follicle है ना FSH makes them what? Become mature. समझ रहे हो आप लोग? And see, finally the egg got mature. और साथ साथ ये रिलीज करते हैं क्या? ऑस्ट्रोजन. ऑस्ट्रोजन. ऑस्ट्रोजन क्यों रिलीज करते हैं? बिकॉज वो जो होता है ना ये व्हाट इज दैट? यूट्रस. बच्चों याद है यूट्रस का जो इनर फेस है व्हाट डू वी कॉल दैट? यूट्रस लाइनिंग. तो एस्ट्रोजन इसको थिकन करता है. एस्ट्रोजन थिकन्स दी यूट्रस लाइनिंग बिकॉज अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो एम्ब्रियो वहां इम्प्लांट होगा. सो दिस थिकनिंग. सो व्हाट डज एस्ट्रोजन डू?
maintains that. So FSH made from pituitary acts on ovary, makes follicles in ovary, it makes follicles to turn into egg, and it also makes follicles to release estrogen. And what does estrogen do? My question is, where is, for every hormone we are doing that, where is it made? What does it do? So where is it made? Very good. Made in ovary. And what does it do? Assalamu alaikum. Walaikum. Thickens, Walaikum beta, welcome. Thickens the endometrium. Thank you. Thickens the endometrium. यार ठंडा पानी किसी को क्या के भिजवा सकते हैं या खुद ही बॉटल दे दें प्लीज. Thickens the जी uterus lining. Very good खदीजा. Endometrium जो है ना, lining, the inner layer of uterus, उसको thicken करता है. Why? Because उधर egg mature हो, उधर ये thicken हो. समझ आ रही है बच्चों? समझ आ रही है बेटा? नहीं आ रही? So FSH is made from pituitary, acts on ovaries, makes immature eggs return to mature eggs, and also makes them release estrogen. Estrogen job is to thicken the endometrium. By the time follicle turns to mature egg, endometrium thickens. Endometrium gets thickened. ये दोनों timed है, एक ही वक्त में हो रहे हैं साथ साथ. अब देखें यूट्रस तो नीचे है और ब्रेन यहाँ पे है. How would brain realize that thickness has been achieved? Because अगर आप मेरी बात समझें तो इसको हम करते हैं थोड़ा सा ऊपर, if I can, but I cannot. बेटा आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि जो थिकनेस है वो कौन करता है? ऑस्ट्रोजन. यस नो? लुक, जो ऑस्ट्रोजन बढ़ता है उसका थिकनेस भी बढ़ रही है. तो ब्रेन को कैसे पता चलता है कि थिकनेस हो रही है? राइजिंग ऑस्ट्रोजन. Could you get my point? नहीं? FSH is made in pituitary. Pituitary is part of brain. And FSH goes to act on ovaries. And ovaries, what does FSH do? It makes immature eggs called follicles turn to mature eggs. And FSH also makes them release what? Estrogen. What does estrogen do? Thickens the endometrium. ये यूट्रस है, इसकी जो लाइनिंग है, सो दैट उधर एग मैच्योर हो रहा है. अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फिर वो एग ने जाइगोट बनना है. जाइगोट से याद है एम्ब्रियो बनता है ना, उसे इम्प्लांट होना है तो आगे यूट्रस रेडी हो. तो उधर मैच्योरेशन हो रही है, साथ साथ एस्ट्रोजन के थ्रू ये थिकनेस हो रही है. तो मैं कह रहा हूँ ब्रेन को कैसे पता चलेगा कि थिकनेस हो जा रही है? बिकॉज एस्ट्रोजन कीप्स राइजिंग. Estrogen keeps rising. The moment estrogen, after the rise, estrogen starts falling, brain considers this as if thickness is maximum. Uterus is down, brain is there. Welcome, Asan. So how would brain realize that thickness ho gayi hai? Because there is fall in estrogen after the rise. नहीं समझ आ रही? What does estrogen do? Thickens the endometrium. तो बेटा एस्ट्रोजन की अमाउंट बढ़ते जा रही है ब्लड में, ब्रेन डिटेक्ट कर रहा है इस राइज को, तो इसलिए कि थिकनेस हो रही है ना. यूट्रस नीचे है, ब्रेन यहाँ पे, तो ब्रेन को कैसे पता थिकनेस हो रही है? क्योंकि एस्ट्रोजन की अमाउंट बढ़ जा रही है. ब्रेन कंसीडर्स दिस के थिकनेस भी हो रही है. तो जब एस्ट्रोजन एक सर्टेन हाई को अचीव करके फिर फॉल करता है तो ब्रेन कंसीडर्स दिस कि इसका मतलब थिकनेस हो चुकी. नो मोर एस्ट्रोजन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिकॉज़ इट हैज डन इट्स जॉब. समझ आ रही बात? तो वो जो आफ्टर द राइज जो फॉल आता है एस्ट्रोजन की अमाउंट में, that is considered by brain that thickness is over now, thickness is done. Then brain sends your mobile chalo, then brain sends another mobile. then brain, oh Allah, Darishabad. पढ़िए मेरे से. मैं घर गया हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग रोक के आपको बताता हूँ.
Very interesting episode. Okay. तो ये हमें समझ आ रही है कि यार अब इसको स्टार्ट से हम देखें. FSH is made by pituitary which is part of brain. By the way, it is part of recording, तो आप इसको सुन सकते हैं शुरू से जो लेट आए दोस्त. तो pituitary will produce FSH, will go to ovary, and ovary there are immature eggs. You actually don't need to know, but it's a medical fact that female baby child is born with around 400 eggs. And when she reaches puberty, FSH from pituitary will go to ovaries and will turn those immature eggs, the follicles, into mature eggs. And under the effect of FSH, immature eggs, look, these immature eggs turn to mature eggs, and they also release estrogen. Estrogen thickens the endometrium. I लिख भी दिया, thickens the endometrium. Endometrium means this uterus lining. तो साथ साथ समझ लो ओवरी में एग मैच्योर हो रहा है, साथ साथ बेटा क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम थिकन हो रहा है. वेरी गुड कामिल, यहां तक समझ आ रही है बेटा. तो मैं ये कह रहा था कि ब्रेन को कैसे पता चलेगा थिकनेस हो रही है, क्योंकि कौन कर रहा है थिकनेस, ऑस्ट्रोजन. सो राइजिंग ऑस्ट्रोजन ब्रेन में, ब्रेन जो सेंसर है दे डिटेक्ट राइजिंग ऑस्ट्रोजन, तो ऑस्ट्रोजन राइज हो जा रहा है. तो ब्रेन को पता है यार यूट्रस थिक हो जा रही है. एंडोमेट्रियम, यूट्रस नहीं सॉरी, यूट्रस लाइनिंग इनर फेस. लेकिन जिस मोमेंट जिस टाइम यूट्रस, जिस टाइम ऑस्ट्रोजन की अमाउंट कम होती है ब्लड में, तो ब्रेन समझता है कि इसका मतलब थिकनेस फुल हो गई, नो मोर थिकनेस इज रिक्वायर्ड, थिकनेस इज डन. तो फिर ब्रेन देन पिट्यूटरी रिलीजेस एलएच. ये मैं कह रहा था. सो दिस इज आल्सो सीक्रेटेड बाय व्हाट, पिट्यूटरी. तो देखो जो पिट्यूटरी वाले हैं ना, पिट्यूटरी इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन. उन दोनों को मैं एक ही कलर में लिख रहा हूं. सो दिस इज आल्सो मेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड. मैं इसलिए एक वर्ड को बार बार करूं क्योंकि आप लोग मुझे पूछते नहीं. कुछ बच्चे हैं जो एक्सप्लोर कर लेते हैं यार ये क्या है, कुछ नहीं करते. तो मैं जब पूछता हूँ वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो इसलिए मुझे लगता है पता नहीं हम समझा पा रहे नहीं. LH is made by what, pituitary, and this goes and acts on mature egg. ये when oestrogen falls, वो बर्थ कंट्रोल अभी कोर्स से निकल चुका है ना जी. अच्छा, after the thickness is achieved, you know, after the thickness is achieved. बच्चों समझ आ रही है. और थिकनेस अचीव होने का कैसे पता चलेगा ब्रेन को, कामिल बताएंगे. कार्ड कौन सा, एक वो जो, हाँ हाँ आपने कहा था जी जी, क्या लिया उन्होंने, जी जी जी. आफ्टर दी थिकनेस इज अचीव्ड, ब्रेन को पता चलेगा क्योंकि ऑस्ट्रोजन कम हो रहा है, समझ रहे हो. फिर ऑस्ट्रोजन पिट्यूटरी ब्रेन विल रिलीज, या पिट्यूटरी विल रिलीज LH. LH इस पे जाके काम करेगा बेटा. इसको मैं ना वेट धरो, अगर मुझे मिल रहा है, आई डोंट नो किसको कैसे चूज करते हैं, एनीवे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गाय. इस पे जाके कौन काम करेगा, LH. समझो मैं क्या कहता हूँ. दी मेच्योर एग जिसको हम कहते हैं, मेच्योर एग तो नहीं कहना चाहिए, मेच्योर फॉलिकल. इसके अंदर एग है, समझ लो मेच्योर फॉलिकल के अंदर एग है. और जब इससे एग निकलेगा बाहर, तो यू नो व्हाट विल बी लेफ्ट बिहाइंड, इट इज कॉल्ड येलो बॉडी. ये मैं इसको कैसे लेबल करूं, दिस इज कॉल्ड येलो बॉडी या कॉर्पस ल्यूटियम. येलो बॉडी क्या होता है बेटा, आफ्टर इट रिलीजेस दी एग. ये इसमें एरो हम बना लेते हैं यहां से इधर. वेरी गुड. What does LH do? LH makes this mature follicle throw away its egg. LH is luteinizing hormone, egg releasing hormone. समझ आ रही बात. What does LH do? Hello? Causes ovulation. Ovulation means release of egg from mature follicle. Done?
मैं इसको बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कोई चीज हॉन्ट करती है, जैसे कामिल कहते हैं, जैसे अगर आप मुझे पूछे ताकि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल इजी समझ जाएं, मैंने आपको कहा ना मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले आपको ये हार्मोन समझना बड़ा जरूरी है, 4 हार्मोन्स। तो बेटा जो एग रिलीज हो जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा, लीविंग बिहाइंड, लीविंग बिहाइंड, वेरी गुड, येलो बॉडी, कॉर्पस ल्यूटियम, लीविंग बिहाइंड येलो बॉडी। और येलो बॉडी क्या करता है, विच सिक्रीट्स, अब देखो येलो बॉडी एक और हार्मोन बनाएगा विच इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन। अब जो ओवरी से बन रहे हैं उनको ग्रीन से शो कर, प्रोजेस्टेरॉन। व्हाट डज प्रोजेस्टेरॉन डू, विच मेंटेन्स द थिकनेस, which maintains the thickness for about a week, एक हफ्ते के लिए। और अगर अगर वो फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है तो फिर मुझे बताएं थिकनेस मेंटेन करना जरूरी है या नहीं। इफ शी इज नॉट प्रेग्नेंट तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस मेंटेन करना जरूरी नहीं है। हु मेंटेन्स द थिकनेस, which hormone thickens the endometrium, anyone? Very good. And who maintains this? Wow. फर्स्ट वीक में थिकनेस आप समझ लो, आज है 1 इमेजिन इट्स 1 सितंबर, तो आज मेंस्ट्रुएशन हो रही है। टुडे इफ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स इट टेक्स अबाउट 7 days। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि कुछ 2 दिन 3 दिन 5 बार, डॉक्टर्स have made it 7 days for menstruation. The reason because out of course, but just for your interest, reason because it's not only the blood loss that is menstruation. To doctors, it's different types of fluids. Anyway, so okay, 1 week for menstruation, the rupture of endometrium. Rupture of endometrium. 1 week for what? Repair. Under the hormone estrogen. Yes, no? अब वो रिपेयर जब मैक्सिमम होगी तो ब्रेन से कौन सा हार्मोन निकलेगा, LH, जो एग रिमूव कराएगा बाहर, ऑब्वियसली बिकॉज थिकनेस इज मैक्सिमम। डन। LH की वजह से एग निकलेगा, और आफ्टर द एग इज रिलीज्ड फ्रॉम मैच्योर फॉलिकल, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज येलो बॉडी। येलो बॉडी सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन, जो उसको मेंटेन करेगा 1 वीक के लिए। कितने वीक हो गए, फर्स्ट वीक मेंस्ट्रुएशन रप्चर, second full week for repair, third week maintenance. Who maintains the endometrium beta? Progesterone. Who maintains endometrium? Progesterone. और चौथे वीक में अब प्रोजेस्टेरॉन नहीं आ रहा बिकॉज येलो बॉडी खत्म। येलो बॉडी किसके लिए होता है, 1 वीक के लिए, इसकी लाइफ ही 1 वीक। सो येलो बॉडी इज नो मोर प्रोड्यूसिंग, बच्चों येलो बॉडी इज नो मोर प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्टेरॉन। तो 4th वीक में क्या होता है, वीकनिंग, एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स वीकनिंग। तो फिर 4th वीक पे एंड पे जाके एंडोमेट्रियम फिर टूट जाता है, तो हम कहते हैं मेंसेस शुरू हो गए। मेंसेस इसका या यस रिपेयर एस्ट्रोजन। और जब रिपेयर देखें, रिपेयर मतलब थिकनिंग हो रही है, व्हेन थिकनेस इज मैक्सिमम, फिर पिट्यूटरी विल रिलीज LH। LH समझ जाना, L is an ovulation hormone, luteinizing hormone that makes egg release। और एग जब रिलीज होगा पीछे क्या रहेगा बेटा, येलो बॉडी। येलो बॉडी विल मेंटेन द थिकनेस बाय व्हाट, प्रोजेस्टेरॉन, फॉर अ वीक। पहला वीक मेंस्ट्रुएशन, दूसरा रिपेयर मींस द थिकनेस, थर्ड मेंटेनेंस बाय प्रोजेस्टेरॉन। सुन लो मेरी बात, पहला मेंस्ट्रुएशन, एक छोटी सी बात, दूसरा रिपेयर बाय एस्ट्रोजन, third one maintenance of thickness by what, progesterone। very good, coming from dash येलो बॉडी। देखो प्रोजेस्टेरॉन कहां से आता है बेटा, येलो बॉडी। येलो बॉडी कहां से आती है, मैच्योर फॉलिकल व्हेन थ्रोज अवे द एग, येलो बॉडी इज लेफ्ट हियर। तो थर्ड वीक इज फॉर मेंटेनेंस। प्रोजेस्टेरॉन job is not to thicken the endometrium, its job is to maintain the thickness। and
3rd वीक मेंटेन होता है ना, फिर वो येलो बॉडी खत्म हुआ तो 4th वीक पूरा वो क्या होता है, वीकनिंग। तो 4th वीक के एंड पे दोबारा एंड्रोमेट्रियम टूट जाता है, वी कॉल मेंस्ट्रुएशन। तो ये हर 4 हफ्तों बाद होता है, विच इज अ मंथ। सो इन स्लैंग इज कॉल्ड मेंसेस फ्रॉम लैटिन विच इज अ मंथ। और इसको आपको मजे की बात हो, एक और स्लैंग भी है इसके लिए, पीरियड। यू नो व्हाई? इन केमिस्ट्री आपने सुना होगा पीरियोडिक टेबल, हैव यू स्टडीड पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल एक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है where you find similar properties after regular interval। जैसे आप ग्रुप 1 में देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अगर आप ग्रुप 8 में देखें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जो भी है, जीडॉन, रेडॉन। तो आप एक सर्टेन गैप के बाद, आफ्टर रेगुलर गैप, नहीं समझ आ रही मेरी बात, यू फाइंड सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो इसको भी पीरियड इसीलिए कहते हैं, बट यू विल नेवर राइट दिस इन पेपर्स बाय। जैसे कल हमने पढ़ा था एमनियन, याद है? एमनियन प्रोड्यूसेस एमनियोटिक फ्लूइड, याद है आपको? शॉक एब्जॉर्बर। तो हाँ, जब बर्थ का प्रोसेस, आप तो हमारे कोर्स से हट गए, लेकिन बर्थ के प्रोसेस में मैं आपको लतीफा सुनाता हूँ। इन द प्रोसेस ऑफ बर्थ एमनियन ब्रेक्स डाउन। और आपको पता है, सॉरी जो मूवीज में एमनियन के ब्रेक डाउन के लिए एक वर्ड होता है वाटर ब्रेक। तो वो कई दफा बच्चे पेपर में भी लिखते हैं। बर्थ आईसीएसई में जो बर्थ का प्रोसेस है ना, दे वर राइट ऑन दिस। तो ये स्लैंग है, लेकिन वैसे समझने के लिए हमारी बड़ा अच्छा है कि पीरियड इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि सिमिलर इवेंट हो रहा है आफ्टर रेगुलर इंटरवल। आई होप अभी तक की ब्रीफिंग आपको समझ आ गई। जिस बच्चे को नहीं आई, हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चन प्लीज। वेरी गुड क्वेश्चन। अगर वो एग इज लाइक अ फुल स्टॉप, उससे भी बहुत छोटा है, तो वो अननोटिसेबली बॉडी से रिलीज हो जाता है। आपका क्वेश्चन काफी आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन अगर मुझे अलाउ करें तो मैंने आपसे कहा ना कि फीमेल चाइल्ड इज बोर्न विद अराउंड 400 एग्स। तो इसलिए लोग कहते हैं कि अर्लियर यू गेन द प्यूबर्टी लेस इज योर रिप्रोडक्टिव एज, फर्टाइल एज। क्यों? विद एवरी मेंस्ट्रुएशन एन एग इज गॉन। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है? जिन बच्चियों को प्यूबर्टी देर से आती है वो देर तक फर्टाइल रहती है। Why? Because obviously that number of eggs remain intact. Did you get my point? तो हर मेंस्ट्रुएशन के साथ अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ऑब्वियसली वो एग इज गॉन। शायद आपको मेरी बात समझ आ रही नहीं है? समटाइम्स बोथ ओवरीज प्रोड्यूस किया। नहीं 400, तो आप सोचें 400 डिवाइडेड बाय 12 आप करें, एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो बनते हैं अराउंड 35 साल। ठीक है, 33 ईयर्स उसकी रिप्रोडक्टिव एज है। एंड इफ शी गेन्स प्यूबर्टी एट से 10, गॉड फॉरबिडन, आजकल जल्दी हो रहे हैं, अगर 10 पे हो रहा है तो कितना, शादी 25 पे हो रही है, तो आप देखें बहुत सारे साल तो वैसे चलेगी। तो एनीवे दिस काफी आउट ऑफ कोर्स है डिस्कशन, लेकिन ये है कि ये मेडिकल के अंदर डिस्कशन आती हैं, दोज डॉक्टर्स हु आर डीलिंग विद रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। आप तो अभी तक की जो बात है उसको क्विक रिकैप करते हैं। 2 हार्मोन बनते हैं बेटा ब्रेन से, और 2 बनते हैं किससे? ओवरी से। अब मैं बोलता हूँ अगर आप लोग मुझे जल्दी से रिकैप देंगे तो इसका मतलब होगा आपको समझ आ गया, एंड वी कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। एंड वी हैव ऑनलाइन हसानुल आबिदीन, अमीर हैदर एंड दुरेश अवार जॉइंड अस लेट। और अमीर हैदर, बच्चों हसान आपको मेरी आवाज आ रही है? दुरेश अवार, कैन यू हियर मी? Yes, sir. अमीर हैदर, Yes, sir, I can hear you. थैंक यू। और हसान, आई डोंट नो इफ यू कैन हियर मी और नॉट। बेटा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, आपके सामने लिखा हुआ भी है और आपने मुझे जल्दी से बताना है। एफएसएच बाय द वे हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन इट्स कॉल्ड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका फुल नेम ये है। सो एफएसएच इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेन एंड एक्ट्स ऑन ओवरीज, राइट? व्हाट डज इट डू इन द ओवरी? इट डज 2 थिंग्स। नंबर 1, it matures the, hello online, it makes follicles matures the follicles to become egg. Follicles are immature eggs, and also FSH makes these maturing follicles release what? Estrogen, which thickens the endometrium. इधर ओवरी में एग मैच्योर हो रहा है, उधर एंडोमेट्रियम थिकन हो रही है, ताकि इन केस अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो इम्प्लांटेशन के लिए आगे तैयारी हो। ये बात समझ आ रही है सबको?
Then estrogen thickens the endometrium. That's it. And that thickness takes about dash days. 7 days. 1 week. 7 days. How would brain know that thickness is maximum? वो कह रही है कि oestrogen begins to fall after the surge, after the rise, when oestrogen begins to fall. That very moment, trust me, एकदम से जैसे ही ऑस्ट्रोजन फॉल करता है, ब्रेन रिलीज कर देता है क्या? LH. और LH का जॉब क्या है? दैट मेक्स क्विकली ओवरीज थ्रो देयर एग्स आउट. और आप हैरान होंगे कि जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं उनमें ऑस्ट्रोजन होता है. यू नो व्हाई? टू डिसीव द ब्रेन के थिकनेस इज स्टिल इन द प्रोसेस. LH रिलीज हो ताकि एग रिलीज हो. LH will make ovaries throw the egg. Yes or no? नहीं समझ आ रही? Sir, yes, I understand. देखो LH का जैसे ही ब्रेन में ऑक्सीजन कम होगा, ब्रेन सोचेगा जैसे आपने कहा थिकनेस इज डन, तो ब्रेन विल रिलीज व्हाट? LH. Yes or no? तो वो फिर Yes, sir. तो LH क्या करेगा? LH will make mature follicles throw away their eggs. और अगर उसी टाइम पे इंटरकोर्स हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होगी, बच्चा पैदा हो जाएगा. And if people don't want to have the baby, so they keep taking estrogen. Why? ताकि हर वक्त ब्लड में ऑस्ट्रोजन की अमाउंट नहीं. it takes 3 to 5 days implant on you. काफी मैं वही आपसे कह रहा हूँ, डिस्कशन सारी हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है, वरना हम इसको जरूर देखेंगे. इट डज, ये तो मेंस्ट्रुएशन को रेगुलर करती है. या असल में आपको पता है बीइंग अ टीचर is a very hard duty because you'll have to be speak what is. एक बच्चे ने एक बार मुझे क्लास में पूछा था कि उसने अपनी जुबान पूछा कि दिस मच वाइन गुड और बैड फॉर मी. तो मैंने कहा गुड. तो फिर एक पेरेंट ने मुझे बहुत ज्यादा इसके ऊपर मुझे उन्होंने पर्सनल पे कहा कि बहुत अफसोस हुआ आपसे ये बात सुन के, बिकॉज लिटिल बिट इज गुड, मच ऑफ इट इज हार्मफुल. मैंने तो कभी जिंदगी में इसको यूं क्या कहते हैं ना, सूंगा भी नहीं है. अल्लाह का शुक्र है, गॉड हैज सेव्ड मी. लेकिन जो एक वैसे गुजारूं फैक्ट, बिकॉज गॉड हैज सेड दिस कि इट हैज सम बेनिफिट्स बट इट्स डिसएडवांटेजेस आर मच मोर देन द बेनिफिट्स, सो इट्स फॉरबिडन. तो खैर बार वो हम कहीं और चले जाएंगे, हमारी कैपेसिटी से बाहर का टॉपिक है. लेकिन बर्थ कंट्रोल जो है वो मेंस्ट्रुएशन को स्टडीज अब हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं हमारे, ये असल में इसके ऊपर डॉक्टर ही आपको अच्छा बता सकते, लेकिन ये रेगुलेट करते हैं मेंस्ट्रुएशन को. कुछ लोगों को 5-5 महीने तक नहीं आते हैं, तो वो इसको रेगुलेशन होती है. इसके और डिसएडवांटेजेस हैं या और बहुत सारे हैं, लेकिन द आइडिया इज, मैं आपको इसको समझाने के लिए एक बात कहना चाह रहा हूँ कि बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होती है ना, उनको एक फिक्स टाइम पे लेना पड़ता है. क्यों? कि अगर आप बाद में, अगर हम टाइम से बाद लेंगे तो ऑस्ट्रोजन कम हो गया तो ब्रेन विल रिलीज व्हाट? LH. समझ आ रही मेरी बात? नहीं समझ आ रही? जो बर्थ कंट्रोल पिल्स का जो एक पत्ता है, पूरा लीफ है, अब तो बहुत डिफरेंट चीजें आ गई ना. अब तो अंडर द स्किन एक पैच रख देते हैं जो एक फिक्स टाइम पे रिलीज करता रहता है. तो ब्रेन बॉडी में एक फिक्स अमाउंट ऑफ ऑस्ट्रोजन रहती है. ब्रेन को आप रिसीव करते हैं कि दिस इज स्टिल इन दी थिकनिंग. लेकिन अभी भी मार्केट में एक लीफ मिलता है जो उसमें होते हैं 28 टैबलेट्स. 21 होती हैं जिसमें ऑस्ट्रोजन होता है, और 7 होती हैं जिसमें ऑस्ट्रोजन नहीं होता, वो खाली होती है. मेरी बात समझ आ रही है? क्यों सर? मैं आपको शो करता हूँ कितनी गोलियां इसमें बेटा. 28. देखो 7 7 7 7 7 4 वीक्स. समझ आ रही मेरी बात? तो ये बात आपका जनरल नॉलेज भी है अबाउट दिस पैटर्न ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और इस टॉपिक के भी हेल्प आपको दे सकता है. वो ये कि वो जो 3 वीक में 21 टैबलेट्स है, उसमें क्या है? ऑस्ट्रोजन. वो तो खाने का क्या होगा, ब्रेन रिसीव हो रहा है ब्रेन, और अगर उस दौरान इंटरकोर्स होता है तो वो फिर नहीं होगा. लेकिन द आइडिया इज कि वाई 7 टैबलेट्स आर कलरलेस. वो जो दूसरे कलर की होती है ना, उनमें ऑस्ट्रोजन नहीं होता, और वो इसलिए होती हैं
कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ये वाली खाओ। You know why to eat during menstruation? ना Why? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो डिफरेंट कलर वाली होती है ना 7, उनमें ऑस्ट्रोजन नहीं होता, वो फेक होती है। दे आर जस्ट टू मेक अस कीप द हैबिट। शायद आप मेरी बात समझ, आप यू आर ऑब्वियसली मुस्लिम ऑडियंस, तो आपको पता है कि आई होप यू ऑल आर मुस्लिम्स, है ना? तो जब वो होता है कि पानी नहीं होता तो आपने सुना होगा तयम्मुम करते हैं, ये सुनो। Yes, sir. तयम्मुम को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सॉरी, एब्लूशन तो वुजू हो गया। अगेन तयम्मुम है ना, तो वो क्या होता है देखें, वो यूं है ये, व्हाई इज इट सो? इससे सफाई तो नहीं होती, टू कीप द हैबिट सेम, ताकि जैसे ही पानी आए आप रिस्टोर करें ऑनेस्टली। तो वो जो बर्थ कंट्रोल पिल्स में भी 21 तो है ऑक्सीजन वाली, और फोर्थ वीक जो 7 टैबलेट्स हैं वो मेंस्ट्रुएशन वीक है, उस वक्त ऑक्सीजन खाना सेंसिटिव है, वो इसलिए खाई जाती है ताकि हैबिट रहे। और दूसरी बात कि उनको एक फिक्स टाइम पे खाया जाता है। क्यों? अब आज 6 बजे खाइए, कल भी 6 बजे। अगर नेक्स्ट डे आप 6 से 7 बजे खाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का अमाउंट बॉडी में कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड है ना? यू कैन हैव इट अ लिटिल बिफोर बट नॉट लेट एट एनी कॉस्ट। तो उसमें ये होगा, जब वो कम होगा तो ब्रेन विल रिलीज एलएच। और अगर उसी दौरान, ये भी नहीं होता कि एग रिलीज होने के उसी वक्त, इसे 3 दिन पहले 3 दिन बाद भी हो, देयर आर अबाउट 7 रिस्की डेज, सो यू नेवर नो इवन विद बर्थ कंट्रोल पिल्स। दर्द भरा आपको किस्सा सुना रहे हैं, फादर ऑफ 7 किड्स। So dear friends, my story is basically that FSH from done. This is all जी। अब आप मुझे estrogen thickens the endometrium made in the ovaries, and when estrogen level rises at the peak and then falls, its fall stimulates brain to release what? LH. LH goes and acts on dash। अब तो आखिरी 7 मिनट, अब आप नहीं बोलेंगे तो बहुत दुख की बात होगी। On mature follicles, on mature, ऊंचा बोलें please, Follicle. and makes them release dash egg, Eggs. makes them release egg, and dash is left behind. Yellow Yellow body. Yellow body produces progesterone, whose job is to maintain the thickness. Done for about 7 days. अगर वो प्रेग्नेंट लेडी हैं तो फिर पूरी प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हाई होना चाहिए, यस और नो? क्योंकि वो अगर एंडोमेट्रियम थिकनेस मेंटेन नहीं होगी तो मिसकैरेज हो जाएगा। तो वो कौन बनाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? कल हमने पढ़ा प्लेसेंटा। आपको याद है बेटा, कल के डिस्कशन में था कि प्लेसेंटा के 3 जॉब है। नंबर 1 इट इज अ बैरियर, क्योंकि बैड थिंग्स बच्चे में ना जाएं। नहीं याद आ रहा? नंबर 2, इसकी पिक्चर भी आपने देखी, it's a barrier. Number 2, it is where exchange occurs, and number 3, this produces beta progesterone for throughout the month till the pregnancy end. आखिरी महीने में जाके प्लेसेंटा stops making progesterone ताकि एंडोमेट्रियम वीकन हो और बर्थ इज मेड पॉसिबल। जी जी। सो इफ लेडीज, अब मैं जल्दी से एक पिक्चर बनाता हूँ विद योर सपोर्ट, लेट्स सी इफ यू आर विद मी। Okay, can you help me fill these gaps? Are you all there to impress me? Probably. Add nothing from Hassan's today. हसान कहते हैं बस कोर्स भगाएं। कुछ बच्चे हमसे चाहते हैं हम वो करें जो बहुत इजी है, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है। ये देखें, ये दिस, व्हाट इज दिस? ओहो बच्चों, व्हाट इज दिस? रप्चर। ओह अच्छा, ये थिकनेस है। दिस साइड इज थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, और ये बेटा टाइम है एंड वीक्स। ध्यान दे रहे हो? Yes, sir. तो ये थिकनेस कम हो रही है, यस नो? जल्दी से बताएं, व्हाट इज इट? नहीं देखो, थिकनेस कम हो रही है ना, ऑब्वियसली रप्चर है, थिकनेस कम हो रही है। तो ये क्या हो रहा है? मेंस्ट्रुएशन। दिस वीक इज व्हाट? Menstruation. नहीं समझ आ रही?
देखो थिकनेस इतनी थी ना वो कम, और वो 0 तक नहीं आ सकती बिकॉज यूट्रस की अपनी थिकनेस भी तो होती है। रमी जागे, और ये बेटा पहला वीक, फर्स्ट वीक। देखें अभी हमारी डिस्कशन हुई थी इसके ऊपर, प्रॉब्लम भी ला सकते हैं। वेरी गुड रमी। ये जो है ना, दिस वन इज व्हाट, या सेकंड वे इज फॉर अंडर डैश। दुरुशवार आज आपकी तरफ से नथिंग इज हियर। हेलो दुरुशवार, हाँ जी सर। बेटा कुछ बोल नहीं रही। एंड नाउ द थर्ड वीक इज डैश। Ramin, honestly, great, very good. Third week is for maintenance. ये वीक थोड़ा बड़ा हो गया, इसको मैं कम करता हूँ। Maintenance by what? Wow, प्रोजेस्टेरॉन। wow, very good. Progesterone from dash. Kamil. From dash. LH। नहीं, हाँ LH, yes LH तो you're right. Maintenance by progesterone from yellow body. वो LH जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की। LH कहाँ कब रिलीज होगा? LH बेटा इस पॉइंट पर रिलीज होगा, दिस वन। थिकनेस इज मैक्सिमम, क्योंकि ऑस्ट्रोजन उसके बाद कम हो जाएगा। एंड दिस इज वेयर, बेटा बताओ, दिस इज वेयर ओव्यूलेशन अकर्स, एग रिलीज, ओव्यूलेशन अंडर डैश LH फ्रॉम ब्रेन। नहीं समझ आई? नहीं, देखो जब थिकनेस होगी ना तो ब्रेन को पता चला कि थिकनेस फुल होगी, तो जो ही ऑस्ट्रोजन की अमाउंट कम होगी ब्रेन विल रिलीज LH विल मेक रिलीज ऑफ एग। तो ये दिस इवेंट इज ओव्यूलेशन अंडर LH। एग रिलीज होगा तो पीछे क्या बच गया? येलो बॉडी, दैट विल मेक व्हाट? प्रोजेस्टेरोन। तो उससे मेंटेनेंस होगी 1 वीक के। वो तो प्लेसेंटा का बनाते हैं जब प्रेगनेंसी हो जाए। तो ये देखिए, ये वाला क्या है बेटा? दिस थर्ड वीक इज व्हाट? वेरी गुड, मेंटेनेंस। very good. Third week is maintenance. And now fourth week is what? Weakening. Yeah. अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है, अगर वो है तो दिस लाइन विल स्टे कांस्टेंट, क्योंकि अब प्रोजेस्टेरोन आ रहा है इससे, प्लेसेंटा से। तो ये लाइन किसके लिए बेटा? दिस इज फॉर प्रेग्नेंट लेडी, इन केस अ लेडी गॉट प्रेग्नेंट। नहीं, वो ये लाइन थिकनेस स्टिल जाएगी। और अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर ये क्या शुरू हो गया? व्हाट इज दिस बेटा? ये क्या होगा फिर? मेंस्ट्रुएशन। Menstruation again, yeah. Any problem so far? Our today's discussion was about menstrual cycle, and that's all. We are not done yet. Any questions so far? I just show you the picture again. This was menstrual cycle, menstruation for a week, then is repair thanks to estrogen coming from dash. Yes, please, estrogen coming from the time of pituitary, brain gallo, and estrogen will act on what? Oh, sorry. Estrogen from ovary. Follicles. Estrogen from follicles. Yes, it will thicken this Durshwar. Good one. And अगर आप टाइम तो आप हो गया, तो इसके क्वेश्चन आज हम नहीं कर सकते because there is next class. Thank you so much. अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।